We are going to talk about various points for the today's lecture. That is first we are going to talk about the discovery of the DNA, like how that particularly DNA has been discovered. After that, we are going to talk about how DNA was declared to be the genetic material. That DNA is the genetic material. It was discovered, na? So ते particularly कसं आलं, ते particularly काही एक्सपेरिमेंटच्या मदतीने आपल्याला कळालं. That is 3 experiments: Griffith's experiment, Avery, McCarthy and McLeod's experiment. That is the second experiment, and the the most important experiment, that was Hershey and Chase experiment. ये 3 experiment हम लोग देखने वाले. And after that, we are going to talk about a phenomena, that is packaging of DNA. What do you mean by packaging of DNA? Packaging of DNA म्हणजे आपल्याला इथे काय डिस्कस करायचं या हेडिंग मध्ये. आता आपण एक जनरल आयडिया घेतो की डीएनए मॉलिक्यूल खूप लेंदी आहे, बट दॅट लेंदी डीएनए मॉलिक्यूल तो आपण एका छोट्याशा पर्टिक्युलरली ऑर्गॅनिझम मध्ये, दॅट इज अ प्रोकॅरियोटिक सेल और इवन अ युकॅरियोटिक सेल, त्या डीएनए तो लेंदी डीएनए आपण पर्टिक्युलरली त्या छोट्याशा ऑर्गॅनिझम मध्ये कसा बसवणार आहे ते आपण पर्टिक्युलरली याच्यामध्ये डिस्कस करूया. ठीक आहे. So we're going to start talk about from the first point, that is discovery of a DNA molecule. So we are going to talk about how the DNA was particularly discovered. So discovery के लिए सबसे important नाम जो आता है, that is particularly Frederick Michel. कौन था? Frederick Michel. ये Frederick Michel जो साइंटिस्ट है, ये क्या किए? He wanted to particularly discover what are the various substances in the particularly what do we say cells. So उन्होंने शुरू कैसे किया? He particularly went to the local hospitals. वो सारे local hospitals में चले गए थे, and वहां से देखो ध्यान दो, local hospitals में जाने के बाद he particularly took all the particularly bandages from that area. वहाँ local hospitals से उन्होंने bandages खरीदे जो particularly किससे particularly lathered थे? pus cells. उनको particularly important क्या था? उनको pus cells के बारे में पढ़ना. ठीक है. pus cells we know these are nothing but WBCs, and to be very specific, these are nothing but the neutrophils we are talking about. What are they? Neutrophils. Are we clear? So pus cells था, उन्होंने pus cells को लिया, then उन्होंने particularly pus cells को particularly collect करके उन्होंने उसको lyse किया with particularly adding alkaline substance in it. क्या add किया उन्होंने? Alkaline substance add किया into the test tube along with the pus cells, and they observed a particularly substance got precipitated into the test tube. So test tube में क्या हो गया? वो सारा substance pus cells में का कुछ particularly ऊपर precipitate हो गया. And he labeled that particularly content which lathered and got precipitated as particularly nuclein, because he got an idea that that substance came from directly from the nucleus. That substance came from nucleus, and that's why he labeled that particularly what do we say content as nuclein. उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया? Nuclein. But later on, with further particularly chemical analysis, they particularly got to know that the substance nuclein has particularly high phosphorus content in it. ठीक है. क्या था उसमें? हाई फॉस्फोरस कंटेंट था. टू बी वेरी स्पेसिफिक, वो फॉस्फोरस यानी कि फॉस्फेट ग्रुप था. फॉस्फेट यानी कि एसिडिक कंटेंट. सो इट हैज पर्टिकुलरली हाई फॉस्फोरस अलोंग विद द एसिडिक प्रॉपर्टी, एंड दे गॉट टू नो दैट इट हैज फॉस्फेट इन इट. अ लॉट ऑफ फॉस्फेट था उसमें, एंड देन he particularly concluded that nuclein now should be called as, because of its acidic property, it should be called as nucleic acid. So शुरू कैसे हुआ डीएनए का पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी कैसे शुरू हुआ? न्यूक्लिक एसिड्स. So पहले उन्होंने बोल दिया कि there is something that is particularly called as nuclein, which has an acidic property, and because of that they said कि it is a nucleic acid. Then later, with further particularly chemical analysis, they got to know that there are 2 types of nucleic acids. There are 2 types of nucleic acids. One is going to be a particularly RNA, that is particularly known as ribonucleic acid. काय म्हटलोय मी? It is called as ribonucleic acid. And the second particularly nucleic acid type is going to be your deoxyribonucleic acid. Are we cool with this? So 2 type के nucleic acids होते हैं, ये हमें पता चला after that. ठीक है. So that was just the story of the discovery of the DNA, not as the genetic material. But उस time particularly एक बहुत सारे researches चल रहे थे. So क्या जेनेटिक मटेरियल कौन हो सकता है, इसके बारे में पर्टिकुलरली बहुत जनों के बीच में क्या हो रहा था? डिबेट हो रहा था. अब देखो ध्यान दो, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये मैंने भी सोचा रहता अगर मैं उस टाइम पे रहता, तो कि देखो कोई भी कैरेक्टर आने के लिए कौन सा कंपाउंड इंपॉर्टेंट होता है? प्रोटीन. बिकॉज प्रोटीन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर एक्सप्रेस करने देता है. ठीक है, कैरेक्टर एक्सप्रेस करने देता है. हम आगे जाके सीखेंगे, या फिर 10th स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने सेंट्रल डोग्मा के बारे में सुना होगा कि इट इज पर्टिकुलरली डीएनए विच अंडरवेंट्स पर्टिकुलरली व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन. ये हम आगे इन डिटेल पढ़ने वाले हैं. ट्रांसक्रिप्शन विच गिव्स एमआरएनए,
and that mRNA undergoes particularly translation. That mRNA undergoes translation, which gives protein, and that protein is now responsible for character. पर पहले सेंट्रल डोग्मा डिस्कवर हुआ नहीं था, तब तो लोगों को क्या लग रहा था, प्रोटीन ही पर्टिकुलरली क्या जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, प्रोटीन के वजह से, क्योंकि कैरेक्टर आ रहा है ना, तो लोगों को लगने लगा था कि प्रोटीन ये जेनेटिक मटेरियल है। और पर्टिकुलरली उस पर बहुत ज्यादा डिबेट होता था कि प्रोटीन नहीं डीएनए जेनेटिक मटेरियल, बट लोग बोलते थे कैरेक्टर तो प्रोटीन दे रहा है, क्योंकि अगर प्रोटीन कोई एब्सेंट नहीं होगा तो कैरेक्टर नहीं बन रहा था। So because of that, what happened? Because of that, what happened? People had an idea or had a thought that protein is the particularly genetic material, but not the DNA. So फिर कुछ particularly time के बाद कुछ scientists particularly function में आए. That is particularly around 1928. Around 1928, Griffith's experiment got into particularly action. अब ग्रिफिथ ने particularly क्या किया था उसके बारे में तुमने पहले आइडिया दूंगा। ग्रिफिथ ने 1928 में he particularly initiated the first experiment regarding the particularly what do you say character expression. तो character express किस वजह से हो रहा है वो particularly deduce करने के लिए उन्होंने particularly कुछ organisms लिए थे। तो उस organism में सबसे particularly famous जो organism उन्होंने लिया था it was Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae एक particularly बैक्टीरिया, ये क्या है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या कॉज कर सकता है, it could cause particularly pneumonia, but not all the variants could cause pneumonia. So उसमें बात करते हैं थोड़ा सा इन डेप्थ। सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में ना हमें पर्टिकुलरली पता है या फिर उनको भी पता था जो कि उन्होंने यूज किया ग्रिफिथ ने, कि इसमें दो पर्टिकुलरली टाइप होता है। इसमें कितने टाइप्स होता है, दो टाइप्स होता है। एक होता है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, का बैक्टीरिया को क्या है कैप्सूल है, इसलिए उन्हें बोलते हैं हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, एंड द अदर बैक्टीरिया इज पर्टिकुलरली नॉन कैप्सुलेटेड। क्या बोला मैंने, नॉन कैप्सुलेटेड। अब ये पर्टिकुलरली कैप्सुलेटेड हो रहा है पर्टिकुलरली या फिर नहीं हो रहा, इसके वजह से उनके ऊपर पर्टिकुलरली कोटिंग जो बनेगी, कैप्सूल बनेगी, उसके वजह से उनकी जो कॉलोनी है, बैक्टीरिया की कॉलोनी जब पेट्री डिश में दिखेगी हमें, वो डिश में हम उनको कॉलोनाइज करते हैं ना, न्यूट्रिएंट मीडियम डाल देते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम डाल देने के बाद हम बैक्टीरिया को उसमें पुट करेंगे, एंड देन बैक्टीरिया इज गोइंग टू यूज द न्यूट्रिशन एंड इट्स गोइंग टू ग्रो अ कॉलोनी। सो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो उनका एक वेरिएंट है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया विल पर्टिकुलरली गिव राइज टू अ स्मूथ कॉलोनी। सो इनको हम पर्टिकुलरली स्मूथ स्ट्रेन बोलते हैं। जो कैप्सुलेटेड होंगे वो स्मूथ कॉलोनी देने की वजह से हम उन्हें क्या बोलेंगे, स्मूथ स्ट्रेन। क्या बोलेंगे उसे, स्मूथ स्ट्रेन। But on the other hand, the non-capsulated one is not going to give a smooth colony, so that's why we're going to call it as R strain, because it's going to give rough strain, rough colony दे रहा है, इसलिए हम उसके बोलेंगे rough strain। But ये थिंग क्या है, ये स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन फायदा क्या है इन चीज का, या फिर ये पर्टिकुलरली क्या इंपॉर्टेंस कैरी कर रहा है। The smooth strain always has a virulent factor, virulent factor यानी कि वो बीमार कर सकता है, यानी कि और हम उसको बोल सकते हैं पैथोजेनिक नेचर होता है इसका। क्या होता है, पैथोजेनिक। पैथोजेनिक यानी कि वो बीमार कर सकता है। क्या कर सकता है, बीमार। Are we clear with this? क्या कर सकता है वो, बीमार कर सकता है। On the other hand, the particularly rough strain on the other hand has the particularly ability, it has the ability, sorry, on the particularly other hand, the rough strain is going to particularly have an ability to particularly does not have the ability to cause the disease, so इसको हम particularly non virulent या फिर avirulent बोलते हैं, non virulent और avirulent, और सिंपली नॉन पैथोजेनिक यानी कि डिजीज कॉज नहीं करेगा। कौन सा डिजीज हम बोल रहे हैं, निमोनिया। सो इट्स गोइंग टू बी अ नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। आर वी क्लियर? अब इनका फायदा क्या है, इन्होंने यही बैक्टीरिया को यूज किया था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। सो वी गोना टॉक अबाउट दैट एक्सपेरिमेंट। अब ध्यान दीजिए, सो यहाँ पे कुछ हम पर्टिकुलरली देख रहे हैं, ध्यान दो। सो अब उन्होंने पर्टिकुलरली क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हमारा एस स्ट्रेन लिया। कौन सा लिया, जो स्मूथ स्ट्रेन था ना, कौन सा स्ट्रेन था, स्मूथ स्ट्रेन। उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन को ले लिया एंड ही पर्टिकुलरली इंजेक्टेड दैट स्मूथ स्ट्रेन इनटू द पर्टिकुलरली व्हाट, माइस। सो ही टुक स्मूथ स्ट्रेन, जो पर्टिकुलरली जिंदा स्मूथ स्ट्रेन था, और उन्होंने क्या किया, उस पर्टिकुलरली बैक्टीरिया को किसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, माइस के अंदर। माइस यानी चूहा। सो चूहा के अंदर पर्टिकुलरली उसको इंजेक्ट कर दिया। सो व्हाट हैपेंड, द माइस गॉट इन्फेक्टेड विद द एस स्ट्रेन, और बट ऑब्वियस वो जो है कौन सा कैप्सुलेटेड, दैट इज स्मूथ स्ट्रेन, ये तो पर्टिकुलरली पैथोजेनिक है ना। क्या है ये, पैथोजेनिक है। अगर ये पैथोजेनिक है यानी कि डिजीज कॉज करेगा, कौन सा, निमोनिया। एंड बिकॉज ऑफ द निमोनिया द माइस डाइड, द माइस डाइड। क्लियर? सो पहली चीज ये हुई। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि बाबा चलो माइस स्मूथ स्ट्रेन से मर रहे हैं, यानी कि वो पैथोजेनिक है, यानी कि निमोनिया कॉज कर रहा है।
देन दे पर्टिकुलरली टुक आर स्ट्रेन लिया, फिर माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया, देन दे फाउंड पर्टिकुलरली माइस लिव्ड, माइस मरा क्या नहीं, क्योंकि वो निमोनिया कॉज नहीं कर पा रहा था, वो पर्टिकुलरली स्टेट निमोनिया कॉज नहीं कर रहा था। कुल, फिर उन्होंने क्या किया, ये एस स्ट्रेन जो जिंदा था ना उसको हीट करके किल कर दिया एंड देन दे इंजेक्टेड। सो अब देखो फोर्थ स्टेप में क्या किया उन्होंने, एस स्ट्रेन लिया बट दे पर्टिकुलरली इंजेक्टेड दिस एस स्ट्रेन इन द फॉर्म ऑफ हीट किल्ड। कौन से फॉर्म में उन्होंने पर्टिकुलरली किया था, वेट अ सेकंड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, या सो आई एम सेइंग कि उन्होंने पर्टिकुलरली इसको क्या कर दिया, हीट किल कर दिया था। क्या किया था, हीट किल। हीट किल किया। अब हीट किल करने के वजह से वो एस्ट्रेन तो मर गया, एस्ट्रेन तो मर गया, और तब उसको जाके हमने माइस में इंजेक्ट किया तो माइस फिर भी जिंदा रहा, यानी कि निमोनिया नहीं हुआ, क्योंकि हीट किल करके हमने एस्ट्रेन को मार दिया था, जिसकी वजह से माइस में इंफेक्शन नहीं हुआ। बट अब फोर्थ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट वाज द वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप दैट हैपेंड। उन्होंने आर स्ट्रेन को लिया जो कि था जिंदा, आर स्ट्रेन को लिया जो कि था जिंदा, उसके साथ उन्होंने एस स्ट्रेन को लिया जो कि कैसा था, हीट किल्ड। कैसा था, हीट किल्ड, हीट किल्ड था। अब इन दोनों को मिला के उन्होंने पर्टिकुलरली माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अभी ध्यान दो क्या हो रहा है, जब आर जिंदा था माइस जिंदा है, एस पर्टिकुलरली जब मार दिया था, हीट किल कर दिया था, तब माइस जिंदा है। अब ये दोनों अगर हम इंडिविजुअल स्टेप देखें तो दोनों केस में माइस जिंदा है, तो हम दोनों को मिला के जब माइस के अंदर डाला तब क्या ऑब्जर्व हुआ कि माइस डाइड ड्यू टू निमोनिया। तो फिर वो पर्टिकुलरली थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, भाई ऐसे कैसे हो गया। तो उन्होंने क्या किया, वो मरे हुए चूहे का है ना जो मर गया, उसका पर्टिकुलरली वापस ब्लड निकाला और उसको वापस उन्होंने कल्चर प्लेट पे डाला, जाके वो जो न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्चर प्लेट पे डाला। तो उनको पर्टिकुलरली बहुत मेस्मराइजिंग चीज ऑब्जर्व हुई, उनको वो आर स्ट्रेन की कॉलोनी नहीं मिली, एस स्ट्रेन की कॉलोनी मिली। तो उन्होंने तो सोचा भाई एस किल तो पर्टिकुलरली मार के दे दिया था, एस स्ट्रेन अगर मरा हुआ है तो कॉलोनी में ग्रो नहीं होना चाहिए, कॉलोनी में ग्रो नहीं होना चाहिए। तो फिर वो सोचने लगे ऐसा हुआ क्यों, तो उनको एक कंक्लूजन दिमाग में आया। वो बोले कि जब ये आर स्ट्रेन हमारा जिंदा आर स्ट्रेन, देखो यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पर मैं पहले बता देता हूँ। उनने क्या सोचा, जो हमारा आर स्ट्रेन था, कौन सा आर स्ट्रेन, उसने मरते हुए एस्ट्रेन से, मरे हुए एस्ट्रेन से कुछ ऐसी चीज ले ली, कुछ ऐसी चीज ले ली जिसकी वजह से ये आर स्ट्रेन पर्टिकुलरली क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया, और या फिर इसको हम एक अच्छा वर्ड यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या बोला, ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू इनटू एस स्ट्रेन। सो ये डेड सब्सटेंस है, डेड और किल्ड एस्ट्रेन से आर ने कुछ ऐसा ले लिया, कुछ ऐसा ले लिया जिसकी वजह से हमारा आर स्ट्रेन किसमें कन्वर्ट हो गया, एस स्ट्रेन में। और फिर उस कुछ सब्सटेंस को ग्रिफिथ नहीं बता सके कौन सा सब्सटेंस, ग्रिफिथ यही बोले बस ऐसा कुछ तो मरे हुए एस से जिंदा आर में चला गया, तो फिर जिंदा आर ने ले लिया, जिसके वजह से आर स्ट्रेन गॉट कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन, एंड दिस पर्टिकुलरली फिनोमेना वाज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी भी इन्होंने की थी कि वो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो सकता है। So he particularly discovered the transformation of R strain into S strain through a particularly something, and that something was called as transforming principle. क्या बोला उसे, transforming principle. Cool. That something was called as transforming principle. That something was called as transforming principle. देखो यहाँ पे डायग्राम में भी हमने वो पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट करने को देखा। This is from your state board textbook. That is particularly R strain. When particularly R strain, that is rough strain, was injected into the mice. देखो mice जिंदा है, mice is alive. When smooth strain was particularly injected, the mice got infected and mice died. When heat killed smooth strain was injected into the mice lived. Mice lived. But on the fourth case, when rough strain was alive and there was heat killed smooth strain, when there was heat killed smooth strain, द माइस डाइड, यानी कि उसमें स्मूथ स्ट्रेन आ गया, जबकि देते हुए तो हमने मारे हुए स्मूथ स्ट्रेन दिए थे। सो वो बोले यही उनका कंक्लूजन ही यही था, देयर वाज अ पर्टिकुलरली समथिंग दैट गॉट पर्टिकुलरली ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस इनटू द पर्टिकुलरली लिविंग
R and that transformed that particularly R strain into S strain, and that something should be called as transforming principle. Are we clear? Yeah. So I think we are clear with this part कि कुछ तो चला गया था S मरे हुए S से R में, और वो R को कन्वर्ट कर दिया S में, और उसकी वजह से वो माइस को फोर्थ केस में क्या हो गया था, निमोनिया हो गया, द माइस डाइड. आई थिंक वी आर क्लियर विद द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. देखो ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ हमारे सीबीएसई के बोर्ड्स के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज योर स्टेट बोर्ड एग्जाम, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन थ्योरेटिकल एग्जाम्स. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. स्टेप्स में बताना होता है, जैसे मैंने लिखा वैसे ही उसको रिप्रेजेंट करना है. इट्स अ वेरी इजी वे टू रिप्रेजेंट इट. इतने वैसे बस हमको बैक्टीरिया के बारे में बताना है, कौन सा बैक्टीरिया, एक्सपेरिमेंट 1928 को हुआ था, स्टेप्स क्या क्या किए, एंड व्हाट वाज द कंक्लूजन. What was the conclusion? Clear? चलो. So now we had the experiment by the Griffith, but Griffith ने बताया कि there was a chemical, but he was not able to explain what was the chemical. Right? Still confusion है. प्रोटीन है कि डीएनए अभी तक क्लियर हुआ नहीं है. So फिर कुछ टाइम बाद कौन आया? तीन साइंटिस्ट है, ऑस्वेल, एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लियॉर्ड. ऐसे तीन साइंटिस्ट है, एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लियॉर्ड. ये तीनों ने 1944 को, कौन से साल में? 1944 को. देखो साल इंपॉर्टेंट है, ये तीनों एक्सपेरिमेंट के बहुत साल इंपॉर्टेंट है. टू बी वेरी फ्रैंक, ये नीट एग्जाम के लिए ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी ये क्या कर देता है, साइंटिस्ट को सही में साइंटिस्ट के नाम सही दे देते हैं, ईयर अलग दे देते हैं, तो दो ऑप्शंस बन जाता है. क्योंकि सबको पता है सेकंड एक्सपेरिमेंट जो हुआ एवरी मैक्लियॉर्ड मैकार्टी वाला एक्सपेरिमेंट हुआ, बट कभी कभी वो 1942 और 1944 दे देंगे, इसमें कंफ्यूजन होता है. सो ईयर आर आल्सो दैट मच इंपॉर्टेंट, सो इसको स्किप नहीं करना. ये तीनों एक्सपेरिमेंट का तो ईयर काफी इंपॉर्टेंट है. सो एवरी मैकार्टी एंड मैक्लियॉर्ड्स एक्सपेरिमेंट दैट हैपेंड इन 1944. अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ना, ये थोड़ा सा ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेसिस था, बिकॉज उनको अभी ये था, कोई तो एक चीज थी ना जो पर्टिकुलरली मरे हुए एस से आर में चली गई. तो उनका क्वेश्चन यही था कि बाबा अभी वो केमिकल कौन सा है. उनका क्वेश्चन ये सिंपल था कि अभी वो केमिकल कौन सा वो ढूंढना है उनको. सो उन्होंने बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट किया. दे टुक दैट पर्टिकुलरली हीट किल्ड एस टाइप. देखो ये एक्सपेरिमेंट उसका कंटिन्यूएशन बोल सकता है. तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, ध्यान दो. इस एक्सपेरिमेंट में व्हाट दे डिड, वो पर्टिकुलरली एस्किल्ड टाइप जो था ना, एस्किल्ड हीट टाइप, उसके अंदर देखो, इधर अंदर हमारे पास जो एस ट्रेन था, वो एस ट्रेन को उन्होंने क्या किया, एस ट्रेन को पर्टिकुलरली क्या किया, दे पर्टिकुलरली टुक द एस ट्रेन और उसको हीट किल कर दिया. क्या कर दिया? हीट किल. ओके. आफ्टर पर्टिकुलरली हीट किलिंग, नाउ दे वांटेड टू पर्टिकुलरली सेपरेट ऑल द केमिकल्स व्हिच आर पर्टिकुलरली हैव द कैपेसिटी टू ट्रांसफॉर्म, बिकॉज वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ही नहीं पता ना. तो उनको बस यही था कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का जो केमिकल्स केमिकल पोटेंशियल रखते हैं आर को एस में कन्वर्ट करने को, उनको एक्सट्रैक्ट करना. सो उन्होंने क्या किया, पर्टिकुलरली डाइजेस्टिंग एंजाइम्स यूज की. यानी कि क्या किया होगा, एस ट्रेन में हम पता है अभी एक ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें कुछ बायोमोलिक्यूल्स तो होंगे फिक्स, कुछ बायोमोलिक्यूल्स तो होंगे, लाइक वाइज कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन होगा. क्या होगा? प्रोटीन होगा. फिर क्या हो सकता है, पर्टिकुलरली लिपिड्स होंगे. फिर क्या हो सकता है हमारे पास, पर्टिकुलरली आरएनए होगा, और लास्ट मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डीएनए. तो इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन से लग रहे थे? प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए. इन तीनों में से कोई भी ऐसा हो सकता है जो कि एबिलिटी क्या रखता होगा, किस चीज की एबिलिटी रखता होगा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बनने की. तो उन्होंने क्या किया, वो क्या करते थे, मतलब अभी ये एस्ट्रेन लिया है उन्होंने, अब इसको डाइजेस्ट करेंगे. तो क्या करते थे, अगर हमको प्रोटीन पता, प्रोटीन की एबिलिटी है ना, तो प्रोटीन को छोड़ के बाकी सब डाइजेस्ट कर देंगे. ये डाइजेस्ट कर दो, ये डाइजेस्ट कर दो, ये कर दो, ये कर दो. अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरएनए और डीएनए को डाइजेस्ट करना है. तो आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलरली एंजाइम यूज की, दैट इज पर्टिकुलरली आरएनए. कौन सी एंजाइम थी? आरएनए, दैट इज आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम. एंड डीएनए डाइजेस्ट करने के लिए उन्होंने सेम एंजाइम की, दैट इज पर्टिकुलरली डीएनए एंजाइम. तो उन्होंने कुछ 3 स्टेप्स में एक्सपेरिमेंट किया होगा, ध्यान दीजिए. उन्होंने कुछ 3 एक्सपेरिमेंट 3 स्टेप्स में किया होगा. विल टॉक अबाउट दैट, वेट अ सेकंड. सो देखो, अब विल टॉक अबाउट फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप में क्या किया होगा, ये पर्टिकुलरली टेस्ट ट्यूब थी,
इसमें हम क्या करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेंगे, यानी कि किसको डाइजेस्ट करेंगे, इसमें एस्किल्ड हीट डाल दिया। सबसे पहले ये दिमाग में रखो कि एस ट्रेन डालना है, वो भी मरा हुआ। उसके बाद उसमें हम पर्टिकुलरली ऐड कर देंगे आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, और साथ में एक और ऐड कर देंगे, दैट इज डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब ये होने के बाद वी आर गोइंग टू पर्टिकुलरली ऐड इनटू दैट पर्टिकुलरली आर स्ट्रेन। अब देखो, अगर ध्यान से अगर दिमाग लगा के सोचा, अगर आरएनए डाइजेस्ट कर दिया, डीएनए डाइजेस्ट कर दिया, तो इसमें पर्टिकुलरली क्या है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, प्रोटीन। किसका प्रोटीन, हीट किल्ड एस का, हीट किल्ड एस का प्रोटीन अभी भी वैसा का वैसा। सो नाउ दे वर एक्सपेक्टिंग, फर्स्ट स्टेप में दे वर एक्सपेक्टिंग कि बाबा अगर प्रोटीन ये जेनेटिक मटेरियल है, अगर प्रोटीन ये जेनेटिक मटेरियल है, तो वो एस स्ट्रेन का, हीट किल्ड एस स्ट्रेन का प्रोटीन आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म करेगा, और माइस में इंजेक्ट करने के बाद माइस को पर्टिकुलरली डिजीज होना चाहिए। बट यहां पे हमें क्या पता चला, माइस लिव्ड, माइस लिव्ड। क्योंकि क्योंकि प्रोटीन आर को एस में कन्वर्ट नहीं कर पाया, और उसकी वजह से माइस में पर्टिकुलरली एस्ट्रेन नहीं गया, और एस्ट्रेन नहीं जाने की वजह से माइस डिड नॉट गॉट इन्फेक्टेड विद निमोनिया, एंड दैट्स व्हाई माइस लिव्ड। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। फिर उन्होंने पर्टिकुलरली नेक्स्ट चेक करने के लिए क्या किया, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, डीएनए को डाइजेस्ट किया, आरएनए को डाइजेस्ट नहीं किया। सो व्हाट दे डिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डाल दी, जिनको प्रोटीएज बोलते हैं, प्रोटीएज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद डीएनए को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम डाल दी, दैट इज डीएनएस। अब प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, आरएनए डाइजेस्ट हो गया, और साथ में क्या था पहले से इसमें, एस ट्रेन, जो कि कैसा डाल रखा था हमने, हीट किल्ड। कैसा डाल रखा था, हीट किल्ड। अब देखो, प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, डीएनए डाइजेस्ट हुआ, आरएनए डाइजेस्ट हुआ क्या, नहीं। फिर वापस ऐड कर दिया आर स्ट्रेन, और फिर उस मिक्सचर को हमने किस में इंजेक्ट कर दिया, माइस में। बट अगेन वी फाउंड माइस लिव्ड, अगेन वी फाउंड माइस लिव्ड। कूल। सो यानी कि आरएनए जो हीट किल्ड एस का, हीट किल्ड एस का आरएनए आर स्ट्रेन को एस में कन्वर्ट नहीं कर पाया, और उसकी वजह से माइस में निमोनिया नहीं हुआ, एंड माइस लिव्ड। सो यानी कि आर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। सो अब थर्ड पार्टी आई है, इसमें क्या होगा, अगेन एस्ट्यूबिलिया। अब किसको डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे विद प्रोटीएस। किससे डाइजेस्ट किया, प्रोटीएस से। आरएनए को डाइजेस्ट किया किससे, आरएनए से। किससे, आरएनए एंजाइम से। अब डीएनए को डाइजेस्ट नहीं किया, और उसमें पहले से हमने क्या डाल रखा था, क्या डाल रखा था हमने उसमें, पर्टिकुलरली ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट था एस स्ट्रेन, जो कि कैसा था, हीट किल्ड। कैसा था, हीट किल्ड। अब ये जो मटेरियल था हमने किसके साथ मिक्स कर दिया, आर स्ट्रेन के साथ। किसके साथ मिक्स कर दिया, आर स्ट्रेन। और अब उनको ऑब्जर्व हुआ, माइस डाइड। जब ये मटेरियल माइस में इंजेक्ट किया, द माइस डाइड। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो वापस माइस के अंदर का ब्लड ले लिया, माइस के अंदर का ब्लड लिया, उन्होंने कल्चर किया। तो उन्हें क्या ऑब्जर्व हुआ, क्या ऑब्जर्व हुआ, वही ऑब्जर्व होगा ना जो तुम सोच रहे हो। दैट इज आर स्ट्रेन वाज नॉट फाउंड, इट वाज अ स्मूथ कॉलोनी। इट वाज अ स्मूथ कॉलोनी, यानी कि स्मूथ स्ट्रेन मिले। तो यहाँ पे उन्होंने समझ गए। सो दे वर द फर्स्ट टू गिव द प्रूफ। सो एवरी मैक्लियड मैकार्टी, इन तीनों ने फर्स्ट प्रूफ दिया दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। कैसे, देखो वापस सोचो, डीएनए यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ क्या, नहीं। पर जब उसको एस स्ट्रेन के डीएनए के साथ हमने आर स्ट्रेन को मिक्स किया, तो आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया था एस स्ट्रेन में, और माइस उसी की वजह से मारा। सो इट वाज डेफिनेटली डीएनए that has converted R strain into S strain, and because of that S strain, your particularly mice died. Are we clear? So एक एक्सपेरिमेंट हमें दिमाग में आ गया, पर वो बोलते एक बार कंफर्म कर लेते हैं ना। तो अभी वापस उन्होंने क्या किया, प्रोटीन भी डाइजेस्ट कर दिया, आरएनए भी डाइजेस्ट कर दिया, अभी डीएनए को भी डाइजेस्ट कर दिया, तीनों को डाइजेस्ट कर दिया। अब उन्होंने वापस आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया, तो माइस मरा नहीं, बिकॉज आर स्ट्रेन कन्वर्ट ही नहीं हुआ। तो फिर उनको कंफर्म हो गया, देखो जब डीएनए रख रहे हैं तो निमोनिया हो रहा है, माइस मर रहा है। अगर डीएनए नहीं रखा तो माइस जिंदा रह रहा है। तो इससे कंक्लूजन क्या हो गया, डीएनए जो एस्ट्रेन का था, मरे हुए एस्ट्रेन का जो डीएनए था, वो आर स्ट्रेन ने ले लिया, और आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गया, एस में, और उसकी वजह से माइस को क्या हो गया, इन्फेक्शन, एंड माइस डाइड। क्लियर है, द माइस डाइड। आर वी क्लियर विद दिस पार्ट, आर वी क्लियर विद दिस पार्ट, क्लियर, या श्योर। नाउ
सो इन्होंने फर्स्ट प्रूफ दिया. सो वी आर गोइंग टू से एवरी मैक्लियोड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट जो था, इसमें हम ऐसे लिखते हैं कि दे वर द फर्स्ट टू गिव proof. They were the first to give proof as DNA is the genetic material. DNA is the genetic material. ठीक है, DNA is the genetic material. Clear है? चलो फाइन. सो इसके बाद एवरी मैक्लियोड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट के बाद एक और एक्सपेरिमेंट देखो यहाँ पे दिया उन्होंने. आर स्ट्रेन था, प्रोटीन डाइजेस्ट करा, बस प्रोटीन डाइजेस्ट करा तो माइस मर गया. क्यों? क्योंकि डीएनए डाइजेस्ट नहीं हुआ था. पर जब डीएनए डाइजेस्ट हुआ तो माइस मरा क्या? नहीं. तो एक सिंपल एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. अगेन दिस डायग्राम इज फ्रॉम स्टेट बोर्ड. एक इजी सा एग्जांपल है. यू कैन गो थ्रू द टेक्स्ट बुक्स. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट. ये हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इन इट्स ओन सेंस. क्योंकि देखो ध्यान दो, होल्ड अ सेकंड गाइस. ये पर्टिकुलरली था, that was the particularly final solid proof, that was the final solid proof that was given by particularly what the scientist, which showed that DNA is the genetic material. So final proof किसने दिया था? हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट. सो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था? they used particularly few organisms. तो उन्होंने 2 organisms यूज किए थे इसमें. पहला था that is particularly बैक्टीरियोफाजे. कौन थे? बैक्टीरियोफाजे. These are particularly viruses that infects whom? Bacteria. Virus that infects bacteria. Clear? अब ये तो हमें समझ गया. अब ये बैक्टीरियोफाज के पर्टिकुलरली कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखो बैक्टीरियोफाज जो होता है ना, उसका कंपोनेंट्स में 2 ही चीजें मिलेंगी. एक होता है द पर्टिकुलरली न्यूक्लिक एसिड, एक होता है न्यूक्लिक एसिड. And to be very specific, it was particularly DNA only. And the second component which is found is the particularly capsid coat, which is nothing but made up of protein. ये देखो ना, इधर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बैक्टीरियोफाज में 2 ही कंपोनेंट्स है. क्या है? 2 ही कंपोनेंट्स, दैट इज पर्टिकुलरली न्यूक्लिक एसिड, टू बी वेरी स्पेसिफिक डीएनए, एंड कैप्सिड, दैट इज प्रोटीन. योर पर्टिकुलरली डीएनए, your DNA, or let's say nucleic acid is going to be particularly considered like having in it is particularly phosphorus. इसमें क्या होता है? डीएनए में क्या मिलेगा? फॉस्फोरस मिलेगा, जो कि पर्टिकुलरली प्रोटीन में नहीं होता. और प्रोटीन में क्या मिलेगा? सल्फर, जो कि हमें पर्टिकुलरली कहां में नहीं मिलेगा? हमारे पर्टिकुलरली न्यूक्लिक एसिड में नहीं मिलेगा. अब उन्होंने क्या किया? ये जो पर्टिकुलरली वायरस होता है, देखो वायरस का थोड़ा सा शेप हम बात कर रहे हैं. इट्स गोइंग टू हैव पर्टिकुलरली व्हाट सच पैटर्न इन इट. ये पूरा प्रोटीन कोड बनाया मैंने. ये क्या बनाया? प्रोटीन कोड बनाया. इसके साथ ही इसके अंदर हम बात करेंगे क्या होगा? डीएनए होगा. क्या होगा? डीएनए. ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? डीएनए. दैट इज गोइंग टू बी द जेनेटिक मटेरियल. दैट इज गोइंग टू बी द जेनेटिक मटेरियल. सो ये जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर होगा. यही कुछ होगा उसका पर्टिकुलरली सीन. इसमें हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या हो गया? ये क्या है? उसका प्रोटीन कोड. और ये क्या हो गया? उसका पर्टिकुलरली डीएनए, दैट इज जेनेटिक मटेरियल. वी स्टिल डोंट नो व्हाट एक्चुअली. वो तो एक्सपेरिमेंट पर्टिकुलरली करने के बाद हमने फाइनली बोल दिया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. पर अभी के लिए हम बोलते हैं उसमें डीएनए है, प्रोटीन कोड है. अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जब वो उसका काम क्या? इट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया में कुछ चेंज आएगा ना. बैक्टीरिया इन्फेक्ट होने के बाद सेल्स में कुछ तो चेंज आएगा ही ना. अब जब चेंज आ रहा है तो क्या हो रहा है? कैरेक्टरिस्टिक तो चेंज हो रहा है. अगर हमने ये बहुत अच्छे से डिड्यूस कर लिया कि वायरस के इन्फेक्शन के बाद, देखो ध्यान दो, वायरस के इन्फेक्शन के बाद अगर बैक्टीरिया में चेंज आ रहा है तो कोई तो एक ऐसा सब्सटेंस है जो वायरस से गया बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया का कैरेक्टर चेंज कर रहा है. क्या कर रहा है? कैरेक्टर चेंज कर रहा है. अगर हमें पता चल गया प्रोटीन के वजह से कैरेक्टर चेंज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल. और अगर डीएनए की वजह से, डीएनए वायरस में से डीएनए अगर बैक्टीरिया में चला गया और बैक्टीरिया इन्फेक्ट होने का हो गया और उसमें कैरेक्टर चेंज मिल रहा है, तो अब क्या बोलेंगे? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. तो हर्शी एंड चेज इन दो पर्सन ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें बहुत सिंपल क्लैरिटी रखी थी कि जो चीज के वजह से, अंदर जाने के वजह से बैक्टीरिया में चेंज आएगा, वही जेनेटिक मटेरियल होगा. इतना सिंपल था. पर उसके लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने बहुत पर्टिकुलरली हेक्टिक वर्क लिया था. दैट इज दे हैव ग्रोन पर्टिकुलरली वायरसेस इनटू 2 ग्रुप्स.
एक ग्रुप ऑफ वायरस उन्होंने ग्रो किया था एक कल्चर प्लेट में, जिसमें उन्होंने क्या रखा था, फॉस्फोरस का रेडियो एक्टिव आइसोटोप रखा था, दैट इज पर्टिकुलरली P32। ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है फॉस्फोरस का, उसमें कुछ वायरसेस को ग्रो किया। अब ये यहाँ पे ग्रो करने की वजह से क्या हुआ, उन वायरसेस में उनका डीएनए बन गया रेडियो एक्टिव, दैट इज विद P32, ठीक है। पर कुछ वायरसेस को, फ्यू ग्रुप ऑफ वायरसेस, they have grown in the particularly cultural medium, into the culture medium that has particularly radioactive isotope of sulfur, that is S35 radioactive isotope sulfur का कौन सा था, S35। कुछ वायरसेस को उन्होंने उसमें ग्रो किया, and because of that these viruses had particularly their genetic material, had their genetic protein, they had their protein getting particularly radioactive with S35। सो अब देखो ध्यान दो, ये जो दो ग्रुप बना है हमने, कुछ वायरसेस का डीएनए रेडियोएक्टिव है विद द फॉस्फोरस P32, एंड कुछ पर्टिकुलरली वायरसेस का पर्टिकुलरली प्रोटीन कोड रेडियोएक्टिव है विद सल्फर 35। और अब इन दो ग्रुप ऑफ वायरसेस को हमने क्या किया है, इन्फेक्ट करने लगा है टू हु द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म वी टुक, एंड दैट इज गोइंग टू बी द ई कोलाई। किसको हमने पर्टिकुलरली इन्फेक्ट करने लगा है, उसे ई कोलाई यानी एशेरिशिया कोलाई, एक बैक्टीरिया, बट अब ये बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस है, और ये पर्टिकुलरली क्या है, बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस, और ये क्या हो गया, ई कोलाई। कूल। अब वो एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, तो टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, कहाँ का डायग्राम है, तुम्हें कहाँ से मिलेगा, टेक्स्ट बुक मिलेगा, इट विल बी फाउंड बोथ इन एनसीईआरटी एज वेल एज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। अब वहां पे देखो, ध्यान दो, ये एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस इज द पर्टिकुलरली ग्रुप जहां पे हमने पर्टिकुलरली प्रोटीन को लेबल किया विद सल्फर। इस साइड में हमने पर्टिकुलरली S35 वाला प्रोटीन कोड यूज किया, ठीक है। और हमने कुछ साइड के वायरसेस बनाए जिनको हमने फॉस्फोरस से लेबल किया, यानी कि यहाँ पे P32 से हमने लेबल किया डीएनए को। अभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज रेडियो एक्टिविटी कैन बी ट्रेस्ड इजीली विद वेरियस पर्टिकुलरली इक्विपमेंट्स दैट कैन व्हाट कलेक्ट द रेज, जो हमारे पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव रेज होता है, अल्फा बीटा गामा रे, जो तुम्हारा फिजिक्स का पार्ट होगा, उसमें हम लोग को पता है कि रेज पर्टिकुलरली निकलेंगे, एंड इफ रेज आर कलेक्टेड वी नो दैट देयर इज अ रेडियो एक्टिविटी इन इट। या सो उन्होंने दो प्रकार के वायरस बना लिए उस पेट्री डिश में, जो मैंने बोला स्टार्टिंग में। अब दे लेट द पर्टिकुलरली बोथ द ग्रुप्स इन्फेक्ट द बैक्टीरिया सेपरेटली। तो उन्होंने पर्टिकुलरली पहले ग्रुप को इन्फेक्ट करने लगा with the particularly virus that was labeled with sulfur। दूसरे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करने लगा with the virus having labeled their DNA with the phosphorus P32। फिर उन्होंने पर्टिकुलरली क्या किया, सो पहली स्टेप में क्या करने दिया, इन्फेक्शन करने दिया। क्या करने दिया, इन्फेक्शन। आफ्टर इन्फेक्शन दे पर्टिकुलरली मिक्स्ड इट थॉरली। सो उन्होंने क्या किया, उसको ब्लेंडिंग किया। क्या किया, ब्लेंडिंग यानी थॉरली मिक्स हो गया। मिक्स होने की वजह से व्हाट विल हैपन, that particularly whatever genetic material is there it will be injected into the bacteria। वो इंजेक्ट हो गया इंजेक्ट, ठीक है। सो पहले केस में भी हो गया होगा, दूसरे केस में भी हो गया होगा, वी डोंट नो व्हाट वाज इंजेक्टेड येट, वो तो बाद में पता चलेगा। और फिर दोनों टेस्ट ट्यूब्स उन्होंने कलेक्ट की। ये पहली टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर वायरस कौन सा डाला था, S35 वाला, which was particularly labeled with protein। दूसरा पर्टिकुलरली टेस्ट ट्यूब लिया which was particularly injected with the virus, injected बोलने से अच्छा हम बोल सकते हैं कि उसको मिक्स किया with the virus which was labeled with P32, that is in the DNA। अब दोनों को उन्होंने ना पर्टिकुलरली सेंट्रीफ्यूगेशन वाले एक पर्टिकुलरली डिवाइस पे लगा दिया, एक ऐसा टी शेप का जैसा होगा, दोनों साइड में हमने टेस्ट ट्यूब ऐसे अटैच कर दी, एंड वी पर्टिकुलरली स्टार्ट टू रोटेट दिस। सो सेंट्रीफ्यूगेशन में वही तो होगा। अब सेंट्रीफ्यूगेशन करने के वक्त हम उसको पर्टिकुलरली कंटिन्यूसली रोटेट करेंगे ना, so what will happen, the heavier substance will particularly move faster on the outer periphery and the lighter substance will stay on the central core। so यहाँ पे देखो बाहर साइड पे ज्यादा हेवी चीजें चली गई, दोनों साइड में हेवी चीजें चली गई। so उन्होंने बोला सेंट्रीफ्यूग किया। अब सेंट्रीफ्यूग करने की वजह से what will happen, ध्यान दो, सेंट्रीफ्यूग करने की वजह से what will happen, वहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों टेस्ट ट्यूब्स में ऐसा सीन हुआ कि पहली जो टेस्ट ट्यूब थी जहां पे हमने S35 यूज किया था, उसका बैक्टीरिया सारा नीचे साइड में, और रेडियो एक्टिविटी मिली ऊपर जहां पे प्रोटीन था। तो यहाँ पर्टिकुलरली ये तो फर्स्ट सीन हो गया।
दूसरा सीन था जहां पे हमने पर्टिकुलरली S35 यूज किया था, उसका रेडियो एक्टिविटी टेस्ट ट्यूब के ऊपर रीजन में मिला और बैक्टीरिया सारा नीचे था। दूसरे टेस्ट ट्यूब में उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि बाबा जो हमारा पर्टिकुलरली प्रोटीन था वो ऊपर के रीजन में मिल रहा है, ऊपर के रीजन में प्रोटीन मिल रहा है, प्रोटीन यानी कि वायरस, वायरस का जो पर्टिकुलरली प्रोटीन कोड था ऊपर मिल रहा है, बट रेडियो एक्टिविटी वाज फाउंड ऑन द पर्टिकुलरली रीजन वेयर बैक्टीरिया वाज देयर। यहाँ पे बैक्टीरिया था और वहीं पे रेडियो एक्टिविटी ओवरलैप हो गई और वहीं से क्या मिली, रेडियो एक्टिविटी। और वो रेडियो एक्टिविटी किसकी मिली हमें, ये हमने ट्रेस किया तो हमें पता चला इट वाज ऑफ P32। P32 की रेडियो एक्टिविटी मिली, किस चीज की रेडियो एक्टिविटी मिली हमें, P32। एंड फ्रॉम दैट दे सेड अगर बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिल रही है इस केस में, तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ डाली थी इस केस में हमने, फास्फोरस में, और फास्फोरस कहाँ था, डीएनए में। तो यही से पता चल गया, यही से पता चल गया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल बिकॉज इट वाज फाउंड इन द बैक्टीरिया, whereas protein which was labeled with radioactivity was not found in the bacteria, so we could say protein never particularly went inside the bacteria, वो बैक्टीरिया में गया ही नहीं कभी प्रोटीन। सो प्रोटीन अगर नहीं गया तो बैक्टीरिया इन्फेक्ट ही नहीं हुआ, तो बैक्टीरिया इन्फेक्ट नहीं हुआ तो ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, नहीं होगा। एंड फ्रॉम दैट लॉजिक दे सेड कि यस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ पर्टिकुलरली वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो यही से बोलते हैं कि क्वेश्चन में पूछा था कि which experiment gave the final proof as DNA is the genetic material, तो फाइनल प्रूफ दिया था हर्शी एंड चेज ने। पर ऑप्शन में एवरी मैक्लियोड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट देंगे, बट फाइनल प्रूफ दिया था हर्शी एंड चेज ने। फर्स्ट प्रूफ दिया था डीएनए जेनेटिक मटेरियल है करके एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ने। क्लियर है? I think we are clear with this particularly experiments. I think we are very much clear with this experiments. Cool. So एक बार देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। Fine. Yeah. Sure. Wait a second.